गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। सोमवार को समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन टीएमसी के लिए बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए कोलकाता पहुंची। प्रचार कार्यक्रम से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए जया बच्चन ने कहा कि मेरे नेता अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था कि मैं बंगाल जाकर टीएमसी को अपना समर्थन दूं। ममता बनर्जी के लिए मेरे मन में बहुत प्यार और सम्मान है। एक अकेली औरत हर तरह की जातियों से लड़ रही है। Single woman fighting against all atrocities. Head broken, leg broken, but they have not been able to break her heart and her brain, and her determination to move ahead and make Bengal one of the best in the world. Do not hijack my democracy and my democratic right from me. And when I say me, I represent all the people. And that is why I am here. Because Mamata Banerjee is fighting, struggling, a single lady to preserve democratic right of every individual of Bengal. And Bengal thinks and does much before the rest of the country and the world does. टीएमसी सुप्रीमो ने कहा है कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं, बिना लड़े 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की साजिश नाकाम हो जाएगी। ममता ने कहा है कि 1 पांव से मैं बंगाल जय कर लूंगी और 2 पांव से मैं बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से हटा दूंगी। একটা প্রধানমন্ত্রী শোভা পায়, কালকে একটা মিটিং এ এসছে, আপনি আপনার বক্তব্য রাখতেই পারেন, এটা গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু আপনি একটা প্রধানমন্ত্রী হয়ে কি করে বলেন ইলেকশন কন্ডাক্ট ভায়োলেট করে যে সরকারের রাজ্য সরকারের অফিসাররা রেডি থাকুন, ডেটা তৈরি করে রাখুন, আমি শপথে আসব, এসে এই কাজটা আমি করব। আপনি আগে দিল্লিতে গিয়ে দিল্লিটা সামলান তো, দিল্লিটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছেন। 3 দিনের জন্য বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, ওখানে গিয়েও দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে এসছেন। আগে নিজেকে সামলান। আপনি আমার রাজ্য সরকারকে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার অধিকার আপনার নেই। এটা ইললিগাল, এটা আনকনস্টিটিউশনাল। ইলেকশন চলাকালীন ইউ আর গিভিং ইনস্ট্রাকশন টু মাই ওয়ার্কার্স। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইয়োরসেলফ? আর ইউ গড অর সুপার হিউম্যান? প্রতিদিন মিথ্যে কথা এসে বলছে আর নাটক করতে পারে খুব ভালো। দাঙ্গা করেই আমার চোখ দিয়ে জল পড়বে, বুঝলেন তো কিরকম নাটক করে? খুন করবে, করেই চোখ দিয়ে জল পড়বে। ভালো নাট্যকার হতে পারতো ভাই। আর এদের লজ্জা করে না? রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তুমি কে নির্দেশ দেওয়ার? যাও আগে নিজের অফিসারদের সামলাও। তোমার অফিসারদের যদি আমি নির্দেশ দিই, সেটা তোমার ঠিক হবে? ইজ ইট কারেক্ট? নো, দিস ইজ নট কারেক্ট। আপনাদের লজ্জা করে না আমরা জানি। 125 জনের ওপর অফিসারকে আপনারা রিপ্যাট্রিয়েট করে দিয়েছিলেন, হাঁটিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা বেঙ্গলে কোনোদিন করিনি। কিন্তু বিজেপির কথা শুনে কেউ কেউ যেভাবে দালালি করছেন, আমি দিল্লির কথাটা, এই পথটা আমি একটু একটু অনুসরণ করব। আমি বলিনি তো আমি করব, আমি একটু একটু দেখে নেব, একটু একটু অনুসরণ করব। ভাববেন না যে আমি কিছু জানি না। আমার হাতের তালুতে সবটাই আছে, বুঝলেন? কিছু পুরো হেরে গেছে, পুরো হেরে যাবে। কত সিটের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে ঠিক নেই, আর বলে যাচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। লজ্জাও করে না। दिल्ली के पंजाबी बाग में निर्माणाधीन अंडरपास का एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक मजदूर मलबे में दब गया था, जिसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो गया है। करीब 3 साल पहले इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वहीं आपको बता दें कि निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। तय समय में पुल की नींव के लिए आर्क का निर्माण पूरा हो चुका है। ये ब्रिज पेरिस के आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। 1315 मीटर लंबे इस ब्रिज की लागत 1250 करोड़ रुपए आई है। राजस्थान में जोधपुर जिले की फलौदी जेल से 5 अप्रैल को 16 कैदी फरार हो गए। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया।
तुरंत जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को इस घटना की जानकारी दी गई, जिनके निर्देशन के बाद फलौदी के अलग अलग रास्तों पर कड़ी नाकाबंदी की गई। यहाँ से निकलने वाले हर वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। और कुछ शोरगुल की आवाज़ आई। हमारे ऑफिस से सुरेश बिस्सा जी बाहर आए और उन्होंने यहाँ जानकारी की और उन्होंने बताया कि कुछ लोग जेल तोड़ के भागे हैं। मैं तुरंत ही जेल के अंदर पहुँचा और देखा कि बाहर कुछ सब्जी डली हुई है और अंदर एक जो महिला गार्ड है वो विलाप कर रही थी और उसको भी देखा। और कुछ गार्ड से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ 5-7 आदमी जेल से भागे हैं। तो मैंने तुरंत ही थानेदार जी को इन्फॉर्म किया, डिप्टी साहब को इन्फॉर्म किया और जिला कलेक्टर महोदय को इन्फॉर्म किया। और जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि आप ये देख लें कि कितने लोग गए हैं और नाकाबंदी कराने का इंतजाम करें। और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने सभी एडीएम साहब मौके पर पधार गए हैं। एडीएम साहब ने सभी रेलेवेंट आसपास के थानों को इन्फॉर्म कर दिया है, नाकेबंदी करवा दी गई है। थानेदार जी को निर्देशित कर दिया है कि सभी तरह के आवागमन के साधन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हैं, जैसे रोडवेज है या फिर प्राइवेट बसें रात के समय चलती हैं, उन सबको एक बार होल्ड किया जावे और उन सभी सवारियों की तफ्तीश कर ली जावे। और थानेदार जी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने मौके का मुआयना कर लिया है और वो अभी करीब 3 या 4 पार्टियों को लेकर के अलग अलग जगह जो है वो रवाना हो गए। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को ये फैसला लिया है। ये नाइट कर्फ्यू शहर में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब केजरीवाल सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर दी है। दिल्ली सरकार में टीकाकरण की गति बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में अब 24 घंटों टीकाकरण होगा। मंगलवार 6 अप्रैल से दिल्ली सरकार के टीकाकरण केंद्रों में रोजाना 1/3 केंद्र रात के 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक खुला रहेगा। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती लेकर सामने आई है। देश में पहले 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर से 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और इसके खिलाफ जारी टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। असम विधानसभा चुनाव में धांधली का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल दीमा हसाओ जिले की हाफलांग विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 1 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस सीट के एक पोलिंग बूथ पर 90 मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में थे, लेकिन अब हैरानी वाली बात यह है कि इस पोलिंग बूथ पर फिर भी 171 वोट पड़े हैं। अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के दौरान हुई इस गलती को देखते हुए पोलिंग बूथ के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में सभी उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी हैं। फार्मा कंपनी जायडस कोडिला ने अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना के खिलाफ अपनी दवाई को मंजूरी देने की अपील की है। दवा कंपनी जायडस कोडिला ने कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए अपनी हेपेटाइटिस ड्रग पेगिलाइटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B के इस्तेमाल के लिए DCGI से मंजूरी मांगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार यानी 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। राज्य के कुल 3,998 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मंगलवार को यानी 6 अप्रैल को होना है। इस बीच एक ही चरण में मंगलवार को होने जा रहे मतदान से पहले राज्य भर में कुल मिलाकर 428 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी और सोना चांदी जब्त किए गए हैं। बिहार में कोरोना सेकेंड वेव में बढ़ते कोविड-19 केस को देखते हुए बिहार सरकार ने तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश के खिलाफ सासाराम में स्टूडेंट सड़क पर उतरे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस के खिलाफ शहर के कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट ने सड़क पर तोड़फोड़ की। बिहार की राजधानी पटना के प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की कैसी दुर्दशा है, इसके संबंधित एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चल रही है। उत्तराखंड के जंगल में आग तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। आग बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बुलाए गए। दोनों हेलीकॉप्टर ने उत्तराखंड में मोर्चा संभाल लिया है। एक हेलीकॉप्टर गौचार में तैनात किया गया है, जबकि दूसरा टिहरी झील में। जंगल की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर टिहरी गढ़वाल के कोटी कॉलोनी क्षेत्र में दिखा। देश में कोरोना के नई लहर ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार को पस्त कर दिया है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स
सिर्फ 9 अंकों की गिरावट के साथ 50,020 पर खुला था, लेकिन इसके बाद बाजार की गिरावट बढ़ती गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।